Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1, and today we are going to do question number 5 of exercise 1B, chapter number 1, and which is related to prime numbers, HCF, and LCM. So far, we have completed the perfect squares, their square roots, cubes, and cube roots. And today we are going to do some estimations, some calculations that are not exact. So whenever you are provided with the terms estimate, or you have to find out something approximately close that is not exact, it means that you have to do some mind workout, right? By using calculator, we will have exact valuation of the roots of square roots either, or cube roots. Okay. So if we talk about perfect squares, let's say we have 64. We know 64 is the perfect square of 8. So all we need to do is we're just going to write it down as 8 multiplied by 8. That is, we're going to show it or express it in the form of its product. It means we have 8 square, and this square will cut down this square root. So we'll have 8, right? This is how we can estimate, or we can find out the actual values of the perfect squares. Similarly, if we have a perfect cube like 27, and just keep in mind, this is the sign of square root, and this shows up with a small 3 outside. It is used for finding cube root. Okay. So if you have been provided with a number and you have to find out its cube root, this sign shows up that the number inside needs to be calculated the cube root. Okay. Acha. If we need to find the cube root of 27, all we need to do is we'll just split up into its product, and we will get 3. 3 into 3 into 3. And after we'll get a group of 3, all we need to do is just write it in index notation. And this power 3 will cut down this root, that is cube root. So what are we going to get? A simple 3. It means cube root of 27 is 3. So if we have a number that is a perfect square or a perfect cube, it's very easy to find out their roots. But what if the numbers are neither perfect square nor perfect cube, and we have to find out their cube or square roots? So for these type of questions, we just have to estimate the value of each of the following. So in part A, we have been provided with a number 66, and we don't know what is the exact square root of 66, and we have to find out the square root of 66. But they didn't use the word find the value of each of the following. If it was about perfect squares or perfect cube, then the question would be find the value of each of the following, right? But when the question is about non-perfect squares and non-perfect cubes, then we don't need to find the exact roots, but instead we have to find out the square root that is closest to it. यहाँ पर 66 से जो करीब तरीन हमारे पास स्क्वायर होगा, we will just find that out, and then we will put this sign. This sign is used to symbolize the approximately equals to. This was exactly equals to. 2 dashes implies exact equals to, okay, one another. But this sign that is slightly different from equals to sign, it means that closer to, that is approximately equals to. Since 66 is very much close to 64, and 64 is the perfect square of 8, so we can say that 66 is also closer, root of 66 also closer to 8. That is approximately equals to 8.
Because let's see, square of 1 is equals to 1, square of 2 is equals to 4, right? So these are the two consecutive number, two consecutive roots, and these are the two consecutive squares. The squares of two consecutive numbers are apart from each other. They are never एवर कंसेक्यूटिव, ठीक है? जब हम दो नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी हमारे पास कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे, ठीक है? 1 2 3, these are called consecutive numbers. The numbers one after another are called consecutive. अब इनके जब हम स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी हमारे पास 4 5 6 नहीं आएंगे, कभी भी हमारे पास कंसेक्यूटिव फॉर्म में नहीं आएंगे। 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है? There is a difference of 3 in between, and sorry, square root of 1 was 1, so there is a difference of 2 digits, that is 2 and 3. Then between 4 and 9 we have 4 digits, 5 6 7 8. It means these numbers that are between two perfect squares are नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जब इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे आप 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो यू विल गेट योर आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है? वो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ही नहीं तो इनका आंसर कभी भी होल नंबर में नहीं आएगा। तो ये तमाम नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जब इनका आपने स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आपने एस्टिमेट करना होता है तो यू लुक फॉर दी क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है? तो आप अगर आपके पास 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो 5 और 6 4 से क्लोजर है, तो आप क्या कहेंगे कि इनका स्क्वायर रूट वुड बी क्लोजर टू 4। जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट वुड बी इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, एंड सिमिलरली फॉर 6 इट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है? Probably it would be 2.14, then this one would be 2.36, and so on. Similarly, square root of 7 would be 2.44, and for 8 it would be 2.89 or something like that. तो अब आप देख सकते हैं कि इन सब के स्क्वायर रूट के अंदर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है? अगर ये 2.5 से स्मॉलर है तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 से क्लोजर है, और अगर 2.5 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 3 से क्लोजर है, ठीक है? ऐसे ही नंबर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट 66, 66 इज वेरी मच क्लोज टू 64, और 64 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं कि 66 वुड बी क्लोजर टू द स्क्वायर रूट ऑफ 66 वुड बी क्लोजर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8, ठीक है? इसी तरह से देखिए पार्ट बी के अंदर 80। अब देखिए 88 is very much close to 81, and we know 81 is the perfect square. तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको पता है 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, इसका मतलब है कि 80 भी क्योंकि इससे बहुत क्लोज है, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, तो 80 का भी जो स्क्वायर रूट होगा इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9, ठीक है? सिंपल आपने यहाँ पर जो क्लोजेस्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है उसको आपने देखना है और आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना, दैट्स इट, ठीक है? नेक्स्ट, अब जब बात आती है क्यूब रूट की, मैंने आपसे कहा था कि आपने फर्स्ट 10 एटलीस्ट क्यूब रूट्स याद कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 27, 64, 125, 36 into 6 is equals to 216, and then 7 का क्यूब is 343, and then 512, 729, और फिर 10 का क्यूब is 1000, ठीक है?
अब आप इसमें से देखिए 218 इज वेरी मच क्लोज टू 216, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 218 वुड बी क्लोजर टू 216, एंड सिंस 216 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो 218 है इट वुड ऑल्सो बी क्लोजर टू क्यूब रूट 6। ठीक है, बस आपने साइंस यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स के लगाने हैं। इसी तरह से देखिए 730, 730 इज वेरी मच क्लोज टू 729। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 730 इज प्रिटी क्लोजर टू 729, एंड सिंस 729 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 9, इसका मतलब है ये जो 730 है it's also approximately equals to 9। क्यूब रूट ऑफ 730 भी हमारे पास approximately equals to 9 होगा, क्योंकि 729 अगर 9 का है उसके बाद आने वाले जो नंबर्स हैं वो उसका जो परफेक्ट क्यूब होगा वो 9 पॉइंट समथिंग होगा आपके पास। ठीक है, तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस नीड्स टू बी डन। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, स्क्वायर्स भी हैं और स्क्वायर रूट्स भी हैं और क्यूब्स। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सिंपल है, जब भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे यू हैव टू फॉलो बॉडमास रूल। व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट first solve brackets if any, then order, and order implies to the powers। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई ब्रैकेट्स है तो आपने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर आपने पावर्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रैकेट्स नहीं है बट वी हैव पावर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पावर्स को रिसॉल्व करना है। तो 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 361। लेट्स सी कि 361 हमारे पास कौन से स्क्वायर रूट के करीब है। तो 343 से करीब है ये हमारे पास, बट यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है यूज अ कैलकुलेटर, तो वी विल यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 361। तो बच्चों 361 इज द, यहाँ पर हमने स्क्वायर्स नहीं लिखे, 361 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 19। ये हमारे पास आ गया 90। ठीक है, 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर हमारे पास 361 होता है, तो 361 का रूट क्या होगा, 19 होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था दीज आर द टू रिवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब 21 का क्यूब आपने कैलकुलेट करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई 21 3 टाइम्स, सिंपल। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्लस और 9261, 21 multiplied by 21 is equals to 441. Then 441 into multiplied by 21 gives us 9261। अब हमारे पास ये बिल्कुल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो होगा, प्लस माइनस है तो हमने पहले 49 माइनस 19 करना है, वी विल गेट 30। और उसके बाद फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने सिंपली प्लस कर देना है 9261 को, एंड वी विल गेट 929। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, स्क्वायर रूट्स फाइंड किए, क्यूब रूट्स फाइंड किए, और उसके बाद उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड वी गॉट द आंसर। लेट्स सी पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास फ्रैक्शंस है और मल्टीपल ऑपरेशंस है। अंडर रूट ऑफ 555 प्लस 5 स्क्वायर, देन 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 222। ठीक है, 4 डिफरेंट ऑपरेशन है आपके पास यहाँ पर। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट ऑफ 555 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 555 का जब क्यूब रूट निकाला, अब यहाँ पर आपके 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लेकर आ सकते हैं। पॉइंट्स में आंसर आएगा आपके पास 555 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 23.5584। हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिख दिया।
फिर 5 का स्क्वायर करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स अस 25, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 2 का क्यूब निकालना है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, इट वाज सिंपल। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 2 2 2। ठीक है, अब आपने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 2 2 का। इसको भी आपने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना है, क्योंकि ये भी आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 2 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो जब आप इसका परफेक्ट क्यूब कैलकुलेट करेंगे, क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6.0550, सिंपल। ठीक है, 6.0550, ये आपके पास आंसर आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2 2 2। अब सिंपल है, ऊपर आपके पास एडिशन है, दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो व्हाट वुड योर आंसर बी, 225 प्लस, अच्छा इसको प्लस करने का तरीका याद होना चाहिए कि हमेशा डेसिमल डेसिमल के साथ आता है। सिंस वी डू नॉट हैव एनी डेसिमल इन 25 होल, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, यानी कि इनके डेसिमल पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5584 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 5 8, और ये 48। तो न्यूमरेटर वुड बी 48.558। और दूसरी तरफ आपके पास है 6.0550 मल्टीप्लाइड टू 8। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 48.44। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, बस अब आपके पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आपने सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 1.0024। सिंस इन्होंने हमसे कहा है कि आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखें, इसलिए हम यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं। अगर इन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा कहा होता तो हमारे पास आंसर सिंपली 1 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट सी। इसके अंदर एक अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट्स हों, एक अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट्स हों, तो सिंपली आपने जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स हैं, इनर मोस्ट मोस्ट रूट्स हैं, उसको आपने पहले यहाँ पर सॉल्व करना है। कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4913 परफेक्ट क्यूब है 17 का। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, आपको पता चल जाएगा कि 17 का परफेक्ट क्यूब है 4913। इसका मतलब है कि इट इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो बाहर वाला हमारे पास अंडर रूट है, इट वुड रिमेन सेम, 4 क्यूब प्लस 17, सिंपल। ठीक है, 4 क्यूब की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 प्लस 17। अब आपने क्या करना है, 17 प्लस 64 करना है, एंड यू विल गेट 81। मजे की बात यह है कि 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 9 जार 81 होता है ना, तो 9 का स्क्वायर क्या है, 81। तो 81 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। तो दिस वुड बी योर आंसर, पार्ट सी। सिर्फ पार्ट बी का आंसर हमारा पॉइंट्स पे आया, दैट इज 1.0024। वो भी इसलिए कि इन्होंने हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहा होता तो हमारा आंसर वहां पर भी 1.00 आता, हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते, 1 बन जाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ग्रुप ट्यूशन मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।